Hello. So let's begin with the second method of the ever problem, that is advanced question 1991. In that problem, we are being given that two immiscible liquids of density 1.5 rho and rho is being kept in a circular tube. Two immiscible liquids of density 1.5 rho and rho is being kept in a circular tube of thickness of cross section far lesser than the radius of the tube, of thickness of cross section far lesser than the radius of the tube, that is t is much less than capital R. This is the thickness of the tube t, and the density of the liquids are 1.5 rho and rho. What we are supposed to do is that when the system of immiscible fluids are in equilibrium, we need to calculate the theta for that. And the second one, if by some way there is oscillation in the tube occurs, that is there is oscillation of the fluid occurs in the tube, then calculate the time period of the oscillation. So these are the two questions that we are supposed to solve. At the same time, it is being given in the question arc length cover by the fluid of density rho is pi by 2 r, and the arc length cover by the fluid of density 1.5 rho is also pi by 2 r. Indirectly we can say that this is the fluid A and this is fluid B. Fluid A and fluid B both are subtending an angle right angle at point O. Okay. Now the second approach says that the empty portion is filled with air. So at equilibrium pressure P1 and pressure P2 must be equal, and we are supposed to calculate theta in the very first question because we want this interface of two immiscible liquids at equilibrium or entire system of fluid at equilibrium. So let's begin. जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, when we are going down, it doesn't matter the curvature or the shape of the tube. What matters is how much height had we descended, or how much height had we ascend in order to calculate the pressure. So as we go from top point A to the bottom point B, this is the length that we had fallen, this is the length that we had descended. So basically R, the angle made by this particular red line with the horizontal is theta. This theta 90 minus theta, and this is theta. So R minus R cos theta. So I am going to write the pressure at this point. The pressure at this point is nothing but P1 plus 1.5 rho g R minus R sin theta. Why R sin theta? Because this one will be R sin theta. ये क्या हो जाएगा आपके पास? R sin theta. R s theta मतलब R sin theta. So as we ascend, whatever the height we ascend, that particular height, the pressure corresponding to that particular height gets subtracted. So this is the pressure at this point. So as we go to this point, so this the pressure corresponding to this height will be subtracted. That is minus of rho into G multiplied by R minus R cos theta. So we are at this point. We are at say alpha point. Now we want to reach to this point. अब हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो अगेन द प्रेशर विल बी सब्ट्रैक्टेड, नहीं यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यहाँ पे 1.5 भी आएगा, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड from this is the first point and the second point, the density of liquid is still 1.5 rho. So 1.5 rho G into R minus R cos theta minus of rho into G. अगर ये R है तो ये कितना हो जाएगा R cos theta. तो सिंपली ये हाइट भी आपके पास क्या हो जाएगा R cos theta.
आर कॉस थीटा। वी आर रीचिंग टू दिस पॉइंट। अब अगर हमें यहाँ से पॉइंट यहाँ तक जाना है तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो पार्टिकुलरली यहाँ से यहाँ का जो हाइट होगा ये हो जाएगा आर साइन थीटा, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर साइन थीटा देयर विल बी रिडक्शन इन प्रेशर, सो वी विल यूज माइनस हेयर एज वेल एट द टाइम ऑफ ascent. We use minus at the time of descent. We use plus while calculating the pressure. Minus of rho g r sin theta is equals to P2. Finally, we reach to point P2. At equilibrium, P1 and P2 must be equal. P1 और P2 इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्वल होगा। खैर इसे यहाँ नहीं लिखने की ज़रूरत है। एट इक्विलिब्रियम P1 will be equals to P2. तो अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं 1.5 रो जी। P1 और P2 आपस कट कैंसिल आउट हो जाएगा। आर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रो जी आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या हुआ, माइनस 1.5 साइन थीटा, सो 2.5 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1.5, हाँ, इज इक्वल्स टू 0.5 कॉस थीटा। तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। 1/tan थीटा 1/5 पे जो फ्लूइड सिस्टम है ट्यूब के अंदर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, दैट इज़ किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है। नाउ इफ़ देयर इज़ एन ऑसिलेशन, अगर ट्यूब के अंदर ऑसिलेशन है, मान लो कि हमारे पास ये ट्यूब है जिसके अंदर फ्लूइड रखा गया है, और अगर फ्लूइड का ऑसिलेशन हो रहा है एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द फ्लूइड, देन वो ऑसिलेशन का कारण क्या होगा, जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा पॉइंट ए, इसे तुम कह दो पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उसी के कारण फ्लूइड का ऑसिलेशन होगा। सो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए अगर हम लोग मतलब प्रेशर में डिफरेंस दैट इज़ P1 प्लस 1.5 रो जी आर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1.5 रो जी आर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस रो जी आर साइन थीटा रो जी आर कॉस थीटा एंड साइन थीटा, रो जी आर कॉस थीटा माइनस रो जी आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू P2। स्मॉल चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में जो स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज का मतलब dP। तो बेसिकली अगर हम पूरे सिस्टम को डिफ्रेंशिएट कर दें तो P2 माइनस P1 को हम लोग लिख सकते हैं dP बाई डी थीटा इज, यहाँ से P2 माइनस P1 हो गया। P2 माइनस P1 को हमने क्या लिखा है, स्मॉल चेंज के लिए अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास dP बाई डी थीटा। ठीक है, सो दैट इज़ dP2 माइनस dP1 क्या हो जाएगा dP। सो बेसिकली ये हो जाएगा मेरे पास 1.5 रो इंटू जी इंटू आर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1.5 रो जी माइनस कॉस थीटा माइनस 1.5 रो जी आर कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से साइन थीटा एंड रो जी आर कॉस थीटा एंड रो जी आर साइन थीटा माइनस ऑफ रो जी आर कॉमन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। और इसे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर -1.5 रो जी आर को कॉमन ले लें, tan थीटा 1/5 है तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस रो जी आर कॉमन, cos थीटा माइनस साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट किया जाएगा किसको, cos थीटा को, तो क्या हो जाएगा, रो जी आर प्लस साइन थीटा, ठीक है, रो जी आर साइन थीटा एंड रो जी आर कॉस थीटा माइनस, हाँ ठीक है। तो अगर हम इसे कॉमन ले लें तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/√26, तो 6/√26 माइनस 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 6 को, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, 5 पता चले 90, 9/√26, cos थीटा की 5/√26, 1/√26, 6/√26, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस राइट 9/√26 रो जी इंटू आर माइनस रो जी आर, ये क्या बनेगा, cos थीटा 5 -4, 5/√26 1/√26, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 4/√26। तो अगर इसकी वैल्यूज़ को लिखा जाए, अगर इसकी वैल्यूज़ को लिखा जाए तो मेरे पास जो प्रेशर आएगा वो बेसिकली आ जाएगा -9×4=13 -13/√26 रो जी इंटू आर, और यहाँ पे डी थीटा, रो जी इंटू आर डी थीटा, ये तो प्रेशर आ गया। अगर फोर्स लिखना चाहें, देखो टॉर्क जो आएगा, जो टॉर्क होगा, टॉर्क बेसिकली होगा क्या, m1 + m2 आर स्क्वायर, m1 प्लस, इस वाले सिस्टम में अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, टॉर्क तो आएगा ना, पॉइंट अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वाला टॉर्क तो आएगा ही। जो ये प्रेशर चेंज आया, प्रेशर चेंज के कारण फोर्स आएगा, फोर्स के कारण टॉर्क आएगा। सो m1 + m2 कैपिटल आर स्क्वायर, तो m1 की वैल्यू क्या है, 1.5 m2, तो 2.5 m2 आर स्क्वायर, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 m2 हो जाएगा आपके पास डेंसिटी इंटू एरिया इंटू π/2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। चलिए, और ये किसके बराबर होगा, dp, जस्ट ए मिनट, ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, dp इंटू ए, ये तो फोर्स आ गया, और फोर्स को अगर तुम प्रेशर से, फोर्स को तुम अगर आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारे पास टॉर्क आ गया। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है माइनस लग ही जाएगा साथ ही साथ, तो ये हो गया बेसिकली 2.5 रो ए π/2 r³ इज इक्वल्स टू -13/√26 रो जी आर स्क्वायर इंटू ए इंटू डी थीटा। अब इसमें से कैंसिल क्या कर सकते हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, r³ ये कैंसिल आउट, पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा। तो अगर हम टॉर्क, तो ये हो गया, सॉरी, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा भी तो लगेगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे अल्फ़ा भी तो आएगा, ये अल्फ़ा भी तो आएगा, बिना अल्फ़ा का तो काम ही नहीं होगा। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, दिस एम्प्लॉयज़, अगर हमें अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 इंटू 1/2, 26 इंटू 1/2, तो बेसिकली ये क्या है आपके पास, √26/2 है।
26 इंटू 1/2, तो ये 2 जो होगा, अगर हम 13 को ऐसा लिख दें, 13 को अगर हम लिख दें 26 इंटू 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसल आउट, √26 अपॉन 2.5 पाई इंटू आर, एंड √26 क्या हो जाएगा, √26g, एंड दिस इज थीटा, यहाँ पे माइनस। तो अगर आपके पास अल्फ़ा आ गया है तो कैन वी हैव टॉर्क अल्फ़ा आ गया, सो बेसिकली आपके पास ओमेगा आ गया, दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा आ गया आपके पास क्या, √26g अपॉन 2.5 पाई इंटू आर, ये ओमेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस क्या आ गया, 2 पाई √2.5 आर इंटू पाई अपॉन √26g। तो आपने दूसरे मेथड से भी देख लिया किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 3, थैंक यू। अगले थैंक यू, हाँ चलिए। मामा जी आपका बर्थडे कब है? जन्मदिन कब है? 5 जनवरी। 5 अरे वाह। जनवरी। अरे 5 जनवरी को तो मैं लखनऊ में थी इस साल। योगी जी else was there. हाँ, only all for there. Question from JEE 1991 subjective paper, and we are supposed to find out angle theta when two immiscible liquid in a circular tube. So basically this is a circular tube. In this circular tube, two immiscible liquids are kept. One is having density 1.5 rho and another is having density rho. The green liquid is having density rho, and this liquid, the entire system of the liquids are in equilibrium. So find angle theta so that the interface, this is the interface, so that this interface remains in equilibrium. This is the first question. And the second one, हाँ आ रहे हैं, एक मिनट में आ रहे हैं। And the second one is that the arc length of the liquid, the arc length of the red liquid having density 1.5 rho and the green liquid having density rho are same. That is, ये भी हमारे पास π/2 r होगा, और ये जो आर्क लेंथ इसका होगा, ग्रीन लिक्विड वाले का जो आर्क लेंथ है, दैट इज दिस वन, इसकी भी लेंथ हमारे पास π/2 r ही होगी। दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द रेड लिक्विड एट द सेंटर। ये पॉइंट O पे जो एंगल सबटेंड हुआ ये हमारे पास 90 डिग्री है, और ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है। इस बात का खास ख्याल रखना है। इसे हम लोग मेथड 1 मतलब पहले मेथड से सॉल्व करके देख लें।
पहले तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है जब द सिस्टम ऑफ लिक्विड है ये इक्विलिब्रियम में है, या यूं कहें इंटरफेस ऑफ द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। मेथड 1, एक रफ डायग्राम, जस्ट अ मिनट। पास वो पॉइंट, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है चलिए। सिटी है आपके पास, इस पॉइंट पाई बाई 2 बनाएगा, ये एक रिंग। हाँ, अब टॉर्क अबाउट ओ वो जीरो कर देना है, टॉर्क अबाउट ओ को हमें जीरो करना है। तो टॉर्क अबाउट ये भी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया इंटू एरिया इंटू, तो m1 को सिंपली हम लोग 1.5 m2 लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट 1.5 m2 cos pi by 4 cos theta sin pi by 4 cos theta, that is 1 by root 2 cos theta minus cos pi by 4 sin theta is equals to m2 theta minus, कारण से थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा 1 by root 26 4 to root 2 26g upon 2.5 into r into pi under root 26. Method 2, क्वेश्चन फ्रॉम जे 1990, और आपके पास कैन राइट सिंपली 1 पॉइंट कॉस के साथ माइनस, ठीक है, यहाँ पे 4
second solution of the JEE Advanced PYQs 1991. इस पार्टिकुलर मेथड में हम लोग फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए पिछले मेथड में हम लोगों ने फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को उतना यूज़ नहीं किया था। अब यहाँ पे फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए थीटा कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम एंगल ऑफ द इंटरफेस एंड ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट, और आपके पास, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। द इंटरफेस जो हमारे पास ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इंटरफेस कहलाता है। दिस इंटरफेस इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज द एंटायर सिस्टम ऑफ फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इसे कैलकुलेट करना है, दिस इज आर, रेडियस आर। सो चूँकि यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें एयर भरा हुआ है, एयर इज इन द एम्प्टी स्पेस, तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर आपके पास इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट को अल्फा लिखा जाए, इस पॉइंट को बीटा लिखा जाए, देन प्रेशर एट अल्फा विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट बीटा इज इक्वल्स टू से पी नॉट, ठीक है। एंड वी विल सिंपली राइट, जैसे अब देखा जाए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट को देखा जाए, इस पॉइंट का प्रेशर दैट इज पी नॉट प्लस यहाँ का प्रेशर क्या है, पी नॉट, यहाँ का ये प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, इसका प्रेशर P1 लिख लीजिए, इसका प्रेशर P2, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी कैलकुलेट करना है। तो अगर ये जो हमारे पास फ्लूइड का सिस्टम है, दैट इज ग्रीन प्लस येलो, दैट इज ये ग्रीन प्लस येलो नहीं, ग्रीन प्लस ब्लू का जो फ्लूइड है हमारे पास सिस्टम का, ये 1.5 रो, अगर इसे ऑसिलेट करना है, इसका ऑसिलेशन तभी पॉसिबल है जब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों ही पॉइंट पे प्रेशर का चेंज आए, इसीलिए यहाँ पे P1 और P2 लिखा गया है। लेकिन इक्विलिब्रियम में P1 और P2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा, दैट इज P1 प्लस, इस हाइट को निकाल लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा, तो R cos थीटा R sin थीटा, दैट इज P1 प्लस 1.5 रो इंटू जी R माइनस G upon 2√2 method 2, that is second solution of the JEE Advanced PYQs 1991। जब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों ही पॉइंट पे प्रेशर का चेंज आए, इसीलिए यहाँ पे P1 और P2 लिखा गया है। लेकिन इक्विलिब्रियम में P1 और P2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा, दैट इज P1 प्लस, इस हाइट को निकाल लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा, तो
r cos theta r sin theta, that is p1 plus 1.5 rho into g r. Method 2 of the method You help. Yes. You could be the most important person on the pitch to try and earn some money for charity. Okay, just remember. Okay. Fantastic. Here we go then. Here we go. We told you it was glitz and glamour in the Hero Indian Super League. Here's proof of it. Just hit it as hard. Maybe one more try. Come on, I don't do this. Okay, one more try. Go on then. Okay, one more try. Hitting the post. One more go. One more go. Here we go. Here we go. Last chance. It's do or die. 25,000. Oh! Eliana, it got worse. It got worse, not better. What was? He's a little intimidating, and also the fact that there's professional footballers all around here is a bit scary. But it just shows how much pressure these guys are under. It is. You think I should try one more for good luck? You're not allowed, I'm sorry. I'm not allowed. It's a good cause. Don't you? I'd get in trouble. My director would give me all sorts of grief. Hero Indian Super League, here's proof of it. Just hit it as hard as you can. Pick a side and hit it in the eye. Off you go. Give her a big cheer. Oh, my word, that's so... method 2 of the method 2 is second solution of the JEE Advanced PYQs 1991. इस पार्टिकुलर मेथड में हम लोग फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए पिछले मेजर में हम लोगों ने फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को इतना यूज़ नहीं किया था. अब यहाँ पे फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए थीटा कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम एंगल ऑफ द इंटरफेस एंड ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस भी कैलकुलेट करेंगे. तो जैसे ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट. और आपके पास ठीक है. Question from JEE 1991 subjective paper, and we are supposed to find out angle theta when two immiscible liquid in a circular tube. So basically this is a circular tube. In this circular tube, two immiscible liquids are kept. One is having density 1.5 rho and another is having density rho. The green liquid is having density rho, and this liquid, the entire system of the liquids are in equilibrium. So find angle theta so that the interface, this is the interface, so that this interface remains in equilibrium. This is the first question. And the second one,